کہتے ہیں کچھ حویلیاں صرف خالی نہیں ہوتی، وہ زندہ ہوتی ہیں اور ان کی چھاؤں میں ماضی سانس لیتا ہے۔ جہاں عکس بولتے ہیں اور آئینہ تمہاری نہیں، تمہارے اندر کی حقیقت دکھاتا۔ اگر میں آزاد ہو گئی تو تم قید ہو جاؤ۔ تم نے مجھے دیکھا، اب تم میرے ہو گئے۔ محبت جب عکس میں قید ہو جائے تو آئینہ صرف شیشہ نہیں، سزا بن جاتا ہے۔ محبت، جنون اور عکس کا کھیل جلد آ رہا ہے، صرف اور صرف خواب کی گھڑی 29 پر۔ کہتے ہیں ہر شہر میں کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں وقت رک جاتا ہے اور خاموشی گونجنے لگتی ہے۔ یہ لاہور ہے، میرا شہر، اور آج میں جا رہا ہوں اس کے سب سے خطرناک، سب سے خاموش راز کی، جسے لوگ بانسا سنگھ ہاؤس کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں مقامی لوگ کہتے ہیں وہاں رات کو صرف سائے جاگتے ہیں۔ احمد، شام 5 بجے، لوکیشن لاہور کی پرانی سنسان گلی۔ احمد ایک 30 سالہ ڈاکومنٹری فلم میکر گلیوں میں قدم با قدم چل رہا ہے، کیمرہ اس کے کندھے پر اور ہاتھ میں ریکارڈنگ کے لیے ڈائری۔ دیواروں پر بانسا سنگھ ہاؤس کا پرانا بورڈ نظر آتا ہے، زنگ آلود، آدھا ٹوٹا۔ احمد کیمرے میں بولتے ہوئے، یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا کہ یہاں داخل ہونا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ لیکن میرا سوال ہے، اگر موت تمہیں دکھائی دے تو کیا تم اس کی فلم بنا سکتے؟ احمد گیٹ پر پہنچتا ہے، جیسے ہی دروازے پر ہاتھ رکھتا ہے وہ خود بخود کھلتا چلا جاتا ہے۔ اندر اندھیرا، ٹوٹی ہوئی اینٹیں، جھاڑیاں، ہوا کی سرگوشی۔ ہوا میں ایک عجیب سی بانس جیسے کہ پرانے عطر کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خوشبو نئی نہیں، پرانی یادوں کی طرح، جیسے کسی نے یہاں بہت دیر تک انتظار کیا۔ مرکزی ہال میں 7 بجے احمد مرکزی ہال میں پہنچتا ہے، جہاں ایک پرانا آئینہ دیوار پر لٹک رہا ہے۔ آئینے کے نیچے ایک کرسی الٹی پڑی ہے۔ جیسے ہی وہ کیمرہ آن کرتا ہے، اسکرین پر ریکارڈنگ سٹارٹ آتی ہے، لیکن احمد نے تو بٹن دبایا ہی نہیں۔ احمد کا عکس اس کے پیچھے، ایک عورت سفید لباس میں، بال چہرے پر۔ احمد پیچھے مڑتا ہے، لیکن پیچھے کوئی نہیں۔ وہ تیزی سے سانس لیتا ہے اور گھبرا کر، کون ہے یہاں؟ اگر کوئی ہے تو سامنے آ۔ سیڑھیوں پر اوپر جاتا ہے، ایک دروازہ خود بخود کھلتا ہے۔ اندر روشنی کی ایک ہلکی سی کرن پڑتی ہے۔ کھڑکی کے پاس ایک لڑکی سفید لباس میں کھڑی ہے۔ احمد ذرا احتیاط سے، ایکسکیوز می، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ جگہ تو بند ہے۔ لڑکی آہستہ سے، چہرہ دلکش مگر سرد۔ میں یہاں رہتی ہوں ہمیشہ سے، تمہیں کس نے آنے دیا یہاں؟ احمد، میں احمد ہوں، ڈاکومنٹری بنا رہا ہوں۔ اور آپ کا نام؟ نورین نرم مسکراہٹ کے ساتھ۔ نورین، بس اتنا ہی کافی ہے ابھی کے لیے۔ رات 2 بجے احمد کمرے میں سوتے ہوئے کروٹیں بدلتا ہے اور
ख्वाब देखता है। आग लगी हुई है, एक सिख लड़की भाग रही है, रोजंदर को वो चीखती है, मुझे अकेला छोड़ दिया, वादा किया था ना। अहमद की आँख खुलती है और कलाई पर एक खराश और कमरे में कोई आवाज़ सुनाई देती है, इश्क का जवाब सिर्फ मौत। अहमद रिकॉर्डिंग चेक करता है। कल रात की फुटेज में नौरीन आईने के सामने खड़ी है, लेकिन आईने में सिर्फ अहमद का अक्स है और नौरीन गायब। अहमद खौफजदा हो जाता है, ये कैसे हो सकता है? आईना तो सिर्फ जिंदों को दिखाता है। अहमद हवेली से निकलने की कोशिश करता है, गेट पर पहुंचता है लेकिन दरवाज़ा बंद। पीछे से नौरीन आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आती है। चेहरा अब थोड़ा बदल चुका है, आंखें सुर्ख हो चुकी हैं और मुस्कुराहट बहुत गहरी। नौरीन कहती है, तुम वापस नहीं जा सकते हैं क्योंकि तुम वही हो जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। कैमरा ज़मीन पर गिरता है, वीडियो पर ब्लॉक। अहमद अभी भी ख्वाब की कैफियत में है। पस मंज़र में आग, और वो जन्नत की चीखें सुनाई देती है। वो आईने में देखता है, नौरीन और रोजिंदर एक ही चेहरे पर बदलती हुई शक्लें नजर आती हैं। नौरीन आहिस्ता से कहती है, मैं सिर्फ अक्स हूँ मगर सच हूँ। अहमद की आँख खुलती है, कमरा ठंडा हो चुका है, जैसे हवा में बर्फ शामिल हो गई। मोबाइल पर खुद ब खुद रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है और स्क्रीन पर नौरीन कमरे में चल रही है, हालांकि वो नज़र नहीं आ रही। अगली सुबह अहमद मुकामी लाइब्रेरी में तहकीक कर रहा है। पुराने अखबार की सुर्खियाँ मिलती हैं उसे। 1947 में बांसा सिंह की बेटी रोजंदर कौर की पुरअसरार मौत। तफसीलात के मुताबिक खबर पढ़ने शुरू करता है। रोजंदर एक मुसलमान नौजवान से मोहब्बत करती थी, मगर फसादात के दौरान वो लापता हो गई। बाद में उसकी लाश हवेली के आईने के सामने मिली और आईना खून से भरा हुआ था। अहमद दिल में बोलते हुए, क्या नौरीन रोजंदर की रूह है या ये कोई नई हकीकत है? रात हवेली के अंदर अहमद आईने के सामने बैठा है। पीछे से नौरीन की आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हें सच जानने की इजाज़त नहीं है अहमद, वरना तुम भी मेरी तरह अक्स बन जाओ। अहमद मुड़ता है तो देखता है नौरीन पास खड़ी। वो उसके करीब आती है, आहिस्ता से बोलती है, तुम्हें वो बात बताती हूँ जो किसी को नहीं पता। रोजंदर मर गई थी मगर उसकी मोहब्बत अभी जिंदा है, और जो जिंदा मोहब्बत हो वो कभी किसी को जाने नहीं सकती। नौरीन का हाथ अहमद के गाल पर। अहमद लम्हे भर को सहरज़दा हो जाता है। अहमद आईने के अंदर, कमरे में आईना डसने लगता है। आईने में अब अहमद खुद नहीं, एक और चेहरा नजर आता है। वही सिख नौजवान जिसे रोजंदर मोहब्बत करती थी। नौरीन कहती है, तुम वो ही हो, तुम हो गए, मगर इस बार तुम नहीं बच जाओगे। दरवाज़ा खुद बंद हो जाता है और कमरे में चीखों की आवाज़ से क्या? अहमद कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। सब दरवाजे बंद, खिड़कियों पर लिखा नजर आता है, मोहब्बत की सजा अब है। से कोशिश सुनाई देती है, अब तो इधर अक्स बन जाओ। अहमद की डरी हुई आवाज़ सुनाई देती है, नहीं क्या है, कौन हो और मैं कौन हूँ? पुराना नोट सुबह का वक्त। अहमद आंखें खोलता है। वो अभी भी आईने के सामने ही सोया हुआ है। फर्श पर एक पुराना जर्द कागज पड़ा है, जैसे किसी ने उसके सरहाने छोड़ा हो। नोट पर लिखा है, आईना सिर्फ अक्स नहीं बल्कि सजा है।
अगर तुम इसमें ज़्यादा देर देखोगे तुम अपनी असली को खो दोगे। अहमद खुद कलामी करते हुए, ये किसने लिखा? नूरीन या वो जो कभी रोजंदर थी? लाइब्रेरी की हकीकत। अहमद वापस लाइब्रेरी जाता है। इस बार वो शहर के पुराने रिकॉर्ड्स को गहराई से तलाश करता है। लाइब्रेरियन बताता है रोजंदर कौर की लाश जब मिली तब आयना खून से लथपथ था। उस वक्त बांसा सिंह ने हवेली बंद करवा दी थी। तब से जो भी उस आईने के सामने ठहरा लौट कर नहीं आया। अहमद, मगर मैं तो वापस आ चुका हूँ। मगर ऐसा लगता है जैसे मेरी रूह नहीं आई। नूरीन का राज। रात अहमद फिर हवेली वापस आता है। नूरीन इस बार अहमद के बिल्कुल करीब आती है। धुंध सी उसके गिर्द फैली हुई है। नूरीन अपनी दिलकश आवाज़ में, तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे समझने की कोशिश की, मगर जो मुझे जान लेता है वो बच नहीं पाता। अहमद नरमी से, तुम कौन हो? नूरीन हो या रोजंदर? नूरीन कहती है, मैं वो हूँ जो तुम्हारे अक्स में कैद है। तुम जब खुद को देखते हो तो मुझे आज़ाद करते हो, लेकिन अगर मैं आज़ाद हो गई तुम कैद हो जाओ। आईने में तब्दीली। अहमद इस बार आईने को फिल्माने लगता है। उसी पर रिकॉर्डिंग का आगाज़ कर देता है। वीडियो में नूरीन आईने के अंदर मुस्कुरा रही होती है, लेकिन बाहर वो गायब। अचानक आईने से खून बहने लगता है। उसके अंदर अहमद का ही अक्स बदल जाता है। अब वो कोई और है, एक सिख नौजवान, रोजंदर का पुराना आशिक। नूरीन की चीख गूंजती है, तुम लौट आए, मगर इस बार मौत के बगैर आज़ादी नहीं मिलेगी। अहमद दरवाजे की तरफ भागता है। तमाम दरवाजे बहुत बंद हो जाते हैं। आईना चीख मार कर टूट जाता है, लेकिन आईने के अंदर अब अहमद खड़ा है और बाहर नूरीन, जो अब आम इंसान लग रही है। नूरीन खामोशी से कहती है, शुक्रिया, अब मैं आज़ाद। कैमरा बंद हो जाता है। नूरीन खामोशी से हवेली से बाहर निकलती है। अहमद आईने के अंदर से उसे जाते हुए देखता रहता है। अब वो सिर्फ अक्स बन चुका है। कभी कभार मोहब्बत अक्स में कैद रहती है और जो उसे आज़ाद करे वो खुद कैद हो जाता है। नूरीन अगरचे आज़ाद हो चुकी है, मगर जो चीज़ आईने में बंद हुई है वो सिर्फ अहमद नहीं। आज़ादी के बाद सुबह का वक्त है। नूरीन एक पुराने कुएं के पास बैठकर कुछ पढ़ रही है। चेहरे पर सुकून है, मगर आंखों में खौफ छुपा है। नूरीन दिल में, मैं आज़ाद तो हो गई हूँ, मगर ये आज़ादी कितनी देर की है? वो जो आईने में है वो अब सिर्फ अहमद नहीं। धीमी हवा चलती है और पीछे कोई साया हरकत करता है। एक नौजवान लड़की सारा नई रिपोर्टर बादशाह सिंह की हवेली पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आती है। सारा को पुरानी फुटेज में से एक लड़का नज़र आता है, अहमद। वो हैरान होती है कि अहमद तो लापता हो चुका था, मगर उसके कैमरे में अहमद की झलक नजर आती है, सिर्फ और सिर्फ आईने। सारा घबरा कर, ये कैसे हो सकता है? अगर वो मर चुका है तो ये अक्स कहाँ से आया? नूरीन और अक्स। नूरीन सारा से मिलती है। वो बहुत कमज़ोर लग रही है, उसके बाल झड़ रहे हैं, आवाज़ में कपकपाहट है। वो आईने से दूर रहने की इल्तिजा करती है। नूरीन खामोश लहजे में बोलती है, अहमद ने मुझे आज़ाद किया, लेकिन मैंने जो छोड़ा आईने में वो सिर्फ उसका अक्स नहीं था, वो रोजंदर की नफरत थी। अब वो आज़ाद होने की
کوشش کر رہی ہے تمہارے ذریعے۔ پرانی قبر پر ہلچل۔ سارا ایک پرانے درخت کے نیچے مٹی کھودتی ہے۔ وہاں احمد کا پرانا موبائل، ایک خون آلود رومال اور آئینہ کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ملتا ہے۔ اسی لمحے ہوا رک جاتی ہے اور آئینے کے ٹکڑے میں سارا اپنا چہرہ دیکھتی ہے۔ احمد کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہیں۔ بچوں، آئینہ اب تمہارا نہیں، وہ بلکہ وہ تم میں ہے۔ سارا چیخ مار کر پیچھے ہٹتی ہے۔ نورین اب آزاد ہے، لیکن اس کے ساتھ آزاد ہوئی ہے ایک اور روح۔ آئینہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن راز ابھی مکمل نہیں۔ آخری قربانی۔ نورین آخری بار بانسا حویلی میں داخل ہوتی ہے، ہاتھ میں دیا، آنکھوں میں آنسو۔ وہ آئینے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرتی ہے اور ان پر اپنا منہ ٹپکاتی ہے۔ نورین، یہ عکس اب آزاد نہیں رہے گا۔ اگر میں نے احمد کو بند کیا تھا تو میں ہی اسے آزاد بھی کروں گی، اور اس بار ہمیشہ کے لیے۔ نورین ٹکڑوں کو جلا دیتی ہے۔ فضا میں زوردار چیخیں گونجتی ہیں۔ آئینہ مکمل طور پر راکھ ہو جاتا ہے۔ نورین زمین پر گر جاتی ہے، اس کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں۔ سارا اس کی طرف بھاگتی ہے اور ایک آخری فریم میں آئینے کے حاقستر سے دوبارہ ایک آنکھ نمودار ہوتی ہے۔ نورین نے آئینے کی راکھ میں خود کو قربان کر دیا، لیکن اب سارا پر کچھ اثر ہو رہا ہے۔ احمد کا عکس گیا نہیں، بلکہ نئے جسم کی تلاش میں ہے۔ سارا کی بدلی ہوئی حالت۔ صبح سارا ہوٹل کے کمرے میں آئینے کے سامنے۔ آئینہ اب صاف ہے، مگر سارا کو اپنے چہرے میں نورین کی جھلک نظر آتی ہے۔ ہاتھ کانپتے ہیں، اس کی آواز بدل گئی ہے۔ سارا آہستگی سے، مجھے چھوڑ، میں سارا ہوں، نورین نہیں۔ اور پھر اچانک، لیکن اب تم میرا جسم لے چکی ہو، نورین۔ سارا کا چہرہ آئینے میں آدھا احمد آدھا نورین بنتا ہے۔ حویلی کی واپسی۔ سارا واپس حویلی جاتی ہے، جیسے کسی نے اسے مجبور کیا ہو۔ پرانا آئینہ جلا ہوا ہے، مگر دیوار پر کچھ ابھرتا ہے۔ عکس ختم نہیں ہوتا، وہ بس جسم بدلتا ہے۔ سارا کو فلیش بیک آتا ہے، نورین کی قربانی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو، مگر وہ ہنس رہی ہے، جیسے دو شخص ایک جسم میں ہوں۔ رات خواب میں سارا خود کو احمد کے ساتھ دیکھتی ہے، دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لیے کھڑے ہیں۔ احمد کہتا ہے، میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں نورین، لیکن تم اب نورین نہیں۔ نورین سارا کے جسم، تو پھر کیا میں محبت کی سزا نہیں باندھ سکتی؟ خواب میں دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ جسم میں قید روح۔ سارا کا جسم اب رات کو چلتا ہے، بولتا ہے، جیسے وہ خود نہیں رہی۔ دوست اسے کال کرتے ہیں، وہ جواب نہیں دیتی۔ اس کی آواز ریکارڈنگ میں الگ سنائی دیتی ہے، سارا نہیں ہوں میں قید ہوں، مجھے بچاؤ، نورین کی روح مجھے ختم کر رہی ہے۔ قبرستان کی سچائی۔ سارا ایک درویش سے ملتی ہے، جو اس کے ماضی کو جانتا ہے۔ درویش کہتا ہے، نورین کی قربانی نے آئینہ تو توڑ دیا، مگر رجندر کی روح اب احمد میں قید ہے، اور نورین تم میں۔ اگر تم احمد کو آزاد نہ کرو، تم دونوں ہمیشہ کے لیے عکس بن جاؤ۔ آئینے کی راکھ سے آنکھ کھلتی ہے، حویلی میں اندھیرا ہے۔ راکھ میں آہستہ آہستہ آنکھ نمودار ہوتی ہے اور ایک آواز سنائی دیتی ہے،
मैं वापस आ रहा हूँ नौरीन। ये जिस्म तुम्हारा नहीं और मोहब्बत हमारी सजा बने। मोहब्बत जब अक्स में कैद हो तो जिस्म सिर्फ मट्टी बन जाता है, और जो मट्टी को थामे वही दूसरों को दफन कर देता है। मुर्दा दिलों की मुलाकात। मोहब्बत जब मौत से बंदी हो तो कहानी ख़त्म नहीं होती, बल्कि वहीं से शुरू होती है। रोजंत, नौरीन, सारा, अहमद, ये चारों जिंदगियां, चारों मौतें और एक आई। सारा की कैद और अहमद की मौजूदगी। सारा का कमरा, आईना, अंधेरे में झिलमिलाती पेशानी। सारा आईने के सामने, आंखों में आंसू। अचानक आईने के पीछे अहमद की रूह नमूदार होती है। सारा खौफजदा होकर, अहमद तुम यहाँ? क्या तुम हो? अहमद हाँ सारा, मैं मर चुका हूँ मगर तुम्हें बचाने आया। सारा, मेरा जिस्म नौरीन के कब्जे में है, उसने मुझे जकड़ लिया। अहमद खामोशी से। सारा मुकम्मल तौर पर नौरीन के कब्जे में है। वो खुद को आईने में देखकर कहती है, मुस्कुराते हुए, नौरीन, अब ये चेहरा, ये जिस्म, ये ज़िंदगी सब कुछ मेरा है। फिर अचानक अहमद की रूह आईने से नमूदार होती है। नौरीन को वो नज़र आता है। अहमद, तुमने जो छीना है वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ हवस है नौरीन। नौरीन चीखते हुए, मैंने तुम्हें चाहा था, तुमने मुझे रद्द कर दिया। आईने का जादू टूटने लगता है। आईना कोई आम आईना नहीं, बल्कि रूहों की गुजरगाह का गेट है। अहमद अपनी ताकत से आईने को चमकाता है। सारा की रूह मजबूत होने लगती है। नौरीन के जिस्म में थरथराहट शुरू होती है। सारा अपनी रूहानी कुव्वत को इकट्ठा करती है और कहती है, मैं अपना जिस्म वापस लूँगी इंशाअल्लाह। नौरीन चलाते हुए, नहीं, ये मेरा है। आईना टूटने लगता है, रोशनी फैलती है, तीनों रूहें हवा में लरजती। कुर्बानी। अहमद नौरीन को काबू में करने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है ताकि सारा बच सके। अहमद नौरीन से, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची थी तो मैं उससे बचाऊंगा और तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँ। अहमद की रूह नौरीन के अंदर घुस जाती है। एक ज़ोरदार चीख कमरे में गूंजती है और अंधेरा छा जाता है। नई सुबह और जिस्म में वापसी। सुबह के वक्त सारा की आँख खुलती है। वो पसीने में शराबोर, सांसें तेज तेज चल रही हैं, मगर अब मुकम्मल होशो हवास में। सारा आहिस्ता से, अहमद, आखिर तुमने मुझे बचा लिया। कमरे में आईना टूटा हुआ पड़ा है और मुकम्मल खामोशी है। दरवाजे पर सिर्फ एक हवा का झोंका, ऐसे लग रहा था जैसे अहमद अलविदा कह रहा। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो मौत के बाद भी साथ देती है और रूहों को चाँद से निकाल कर, अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आती है।